کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ 9 مئی کو لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچ گئے؟ سپریم کورٹ کے جسٹس حسن اظہر رضوی کے سوالات۔ 7 رکنی آئینی بینچ کے روبرو ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کیس کی سماعت۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ ایف بی ایل ای کیس میں آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا، سازش کس نے کی ہوگی؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں کہا کہ سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ سویلینس کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، 1967 سے قانون موجود ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ایف بی ایل ای کیس میں اپیلیں ریٹائرڈ افسران نے کی تھیں۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ذہن میں رکھیں کہ ایف بی ایل ای کیس سول مارشل لا دور کا ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 8 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور سے متعلق مشاورت۔ ایویشن ڈویژن کو ڈیفنس ڈویژن میں ضم کرنے کی منظوری کا امکان۔ نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کو وزارت داخلہ میں ضم کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ قومی منارٹی کمیشن ایکٹ 2024 کی منظوری ایجنڈے کا حصہ۔ پبلک پروکیورمنٹ رولز میں نئی شق کے شامل کرنے کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ نیشنل ویمن انٹرپرینورشپ پالیسی اور ایکشن پلان کا ڈرافٹ کابینہ میں پیش ہوگا۔ ای سی اے سی کے ملازمین کے پیکج کا معاملہ کابینہ میں پیش ہوگا۔ پاکستان چینی سرمایہ کاروں سے $250 ملین اکٹھا کرنے کا خواہش مند ہے۔ مصر کی طرز پر یوان بانڈز کے اجرا کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ساؤتھ چائنا مائننگ پوسٹ کو انٹرویو۔ کہا پاکستان کو چینی مارکیٹ سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جون تک پانڈا بانڈز جاری کریں گے۔ اپنی کریڈٹ ریٹنگ کو سنگل بی میں بدلنے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے چینی سرمایہ کاری بہت اہم ہے۔ پاکستان سی پیک کے اگلے فیز میں چین سے مزید تعاون کا خواہاں ہے۔ حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیز کا اجلاس 16 جنوری کو طلب۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت تیسری بیٹھک جمعرات کو دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کیمرہ ہوگی۔ اجلاس میں تحریک انصاف اپنے مطالبات تحریری شکل میں پیش کرے گی۔ اسپیکر ایاز صادق اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کے درمیان رابطے کے بعد ملاقات کی تاریخ اور وقت طے پایا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں نون لیگ والے ہمارے فلاحی منصوبوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ابھی تک ایک بھی ڈھنگ کا منصوبہ شروع نہیں کیا۔ وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی پر چڑھائی کر دی۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا یہ ہمیں بے اختیار سمجھتے ہیں تو ان سے مذاکرات بالکل نہیں ہونے چاہیے، جائیں ان سے بات کر لیں جن کے پاس اختیار ہے، حکومت یا کسی اور کو ان سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کا احتجاج، واک آؤٹ کیا۔ عمر ایوب بولے ہمارے کئی کارکن لاپتہ ہیں، حکومت ہمیں ان سے ملاقات متعلق آگاہ کرے۔ وزیر اطلاعات عطا تار نے جواب دیا یہ لوگ پہلے ہلاکتوں پر آپس میں دست و گریباں ہوئے، کبھی 1200 اور کبھی 12 کہتے رہے۔ اگر کوئی لاپتہ ہے تو بتائیں، کسی وزارت کو لاپتہ افراد سے متعلق درخواست دی، حکومت کسی کو ہاؤس کو ڈکٹیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ پینتالیس مال بردار گاڑیوں کا قافلہ آج ٹل سے پارا چنار کے لیے روانہ۔ ٹل اور ہنگو میں 2 ہفتوں سے 160 مال بردار گاڑیاں روانگی کے لیے کھڑی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے راستے کی کلیئرنس ملتے ہی قافلہ روانہ کیا گیا۔ ادھر قبائلی رہنماؤں کا کہنا ہے بازاروں میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت ہے، لاکھوں کی آبادی کے لیے 45 ٹرک سامان ناکافی ہے، ضرورت کے مطابق سامان فراہم کیا جائے۔ راستوں کی بندش سے علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار، ادویات ختم ہونے سے میڈیکل سٹورز اور پرائیویٹ اسپتال بند ہیں۔ 3 ماہ سے اسکولوں کی بندش سے تعلیمی نظام شدید متاثر۔ امن خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن اور پوری قوت سے جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم۔ سپہ سالار کی پشاور کے دورے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات۔ آرمی چیف نے کہا کہ افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے اور ان کے سیلوں کا خاتمہ کیا۔ دہشت گردوں کے لیے ہماری سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔
फोर्सेस का हर ऑपरेशन उनकी जुर्रत, पेशा वाराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। ISPR के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर भी ब्रीफिंग में शरीक थे। डी चौक एहतजाज पर कायम 13 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 फरवरी तक साबिक खातून अव्वल की जमानत की मंजूरी दी। बुशरा बीबी की थाना रमना में दर्ज रेंजर्स हादसा केस में भी अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर ATC में जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश समेत 9 मई के दिगर मुकदमात की समाअत। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने 104 दिगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। साबिक जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम से रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को NA 128 को काम से रोकने की इस्तदा की। कोयटा के इलाके संजदी की कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कान में फंसे तमाम मजदूरों की लाशों को निकाल लिया गया। चीफ माइंस इंस्पेक्टर का कहना है कि आज कोयला कान से आखिरी लाश को भी निकाला गया। गुज़िश्ता रोज तक कान से 11 लाशों को निकाला गया था। संजदी के इलाके में 9 जनवरी को हादसे से कोयला कान बैठ गई थी। 12 कारकुन कान में फंस गए थे। लॉस एंजलिस की आग ने 40,000 एकड़ रकबा जलाकर राख कर दिया। तेज हवाओं ने आग बुझाने की कोशिशों को खतरे में डाल दिया। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 1,60,000 शहरियों को इनखला की वार्निंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लॉस एंजलिस में अब तक 24 हलाकतों की तस्दीक हुई है। दर्जनों लापता। आग से जलने वाला रकबा पेरिस से बड़ा है। 6 रोज बाद फायर फाइटर्स सिर्फ 11% आग पर काबू पा सके। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। उधर करोड़पति अफराद अपने बंगलों की हिफाजत के लिए निजी फायर फाइटर्स की मदद लेने पर मजबूर। आग बुझाने वाली निजी फर्म्स $2,000 फी घंटा फीस ले रही है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर $3 लाख के साथ PSL के महंगे तरीन खिलाड़ी मुंतखब। कराची किंग्स ने प्लाटीनियम कैटेगरी में डेविड वार्नर को पिक किया। लाहौर कलंदर्स ने प्लाटीनियम कैटेगरी में डेरिल मिचेल का इंतखाब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी प्लाटीनियम कैटेगरी के लिए माइकल ब्रेसवेल पर पैसे लगाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फहीम अशरफ और मार्क चैपमैन को चुना। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को फाइनल किया। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स का भी चुनाव। PSL 10 में कई नामवर स्टार पिक ना हो सके। सरफराज अहमद, टीम सऊदी, उस्मान ख्वाजा, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, शकीबुल हसन में किसी टीम ने दिलचस्पी ना दिखाई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। रोहित शर्मा मुमकिना तौर पर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज। मनफी दर्जा हरारत से झीलें और झरने भी जम गए। लोगों को रोजमर्रा अमूर की अंजामदही में मुश्किलात का सामना। ले मनफी 12 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम करार। गोब्स -11, अस्तोर और सकरतू में पारा -10 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित और कलाम में -7। कोयटा में भी पारा नुक्ते अंजुमान से गिर गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम शदीद सर्द। इस्लामाबाद में पारा 5, पेशावर 9, लाहौर 10 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर में पारा 0, शोपियां और अनंतनाग में 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते से तो कुछ बिल्कुल ज़्यादा ही नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा गैस के बिल भरे जा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। कहाँ तक सिलेंडर भरवाएं, कहाँ तक वो करें, बहुत परेशान हैं। हमें सिलेंडर भरवाने पड़ रहे हैं और वो भी इतनी महंगी गैस आ रही है। एक तो हम लोग खुद रेंट पर रहते हैं,
ठीक है, पानी का रोना, बिजली का रोना, गैस का रोना। क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बाज़ लोगों ने जॉब पे जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, खाना नाश्ता नहीं बन सकता। आधे में नाश्ता बनता है गैस की। कराची और लाहौर में गैस बंदिश का बहरान संगीन। खवातीन का कहना है गैस की लोड शेडिंग से खाना पकाना इंतहाई दुश्वार हो चुका। इंतजार के बावजूद चूल्हों में गैस दिन को आती है ना रात को। अगर कभी मुयस्सर भी हो तो उसका प्रेशर इतना कम होता है, भारी भरकम बिल्स वक्त पर जमा करवाते हैं, फिर भी गैस का बहरान क्यों है? आवाम ऐसी है जो कि फ्रीलांसिंग करती है, सबसे ज़्यादा उनको दुश्वारी का मसला आता है। पूरी दुनिया इंटरनेट में इतनी तरक्की कर गई है कि वो 5G 6G पे चले गए हैं और पाकिस्तान है 4G में भी दाखिल नहीं हो रहा। एक तरफ तो हम डिजिटलाइजेशन की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इंटरनेट हमारा स्लो से स्लो होता जा रहा है। कोई चीज़ जो है ना वो ओपन नहीं होती, बफरिंग होती रहती है और इसमें जो है ना दुश्वारी पैदा हो रही है। पूरे मुल्क के अंदर हालात इस तरह चल रहे हैं, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। स्लो इंटरनेट से ई कॉमर्स और ऑनलाइन राइडर्स का कारोबार मुतासर। 100% चलते कामों की सुई इंटरनेट की बंदिश से सिफर पर आ गई। सार्फिन कहते हैं कि इंटरनेट ना होने से ऑनलाइन काम बंद होने के दहाने पर खड़े हैं। टेलीकॉम कंपनियां कहती हैं कि इंटरनेट ठीक चल रहा है। अगर इंटरनेट ठीक चल रहा है तो हमारे पास खलल क्यों? कराची में हवाई फायरिंग के वाकयात शहरियों के लिए खतरा बन गए। लांटी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से हमीद नामी शख्स जान बहक। पुलिस का कहना है शादी वाले घर पहुंचे तो मुलजमान घर को ताले लगाकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने मुतादिद अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। उधर खोखरा पार, लियाकताबाद, सहराब गोट में भी फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन में मजाहमत पर डाकुओं ने शहरी को गोली मार दी। इसराइल 10 लाख फलस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी पर रजामंद हो गया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात। गजा जंग बंदी मुआहिदा 3 मराहिल में तकसीम किया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल हर खातून फौजी के बदले 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। पहले मरहले में इसराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएगा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गजा और मिस्र की सरहद के साथ वाक़ है। दूसरे मरहले में तमाम शहरियों और बाकी फौजियों की रिहाई के लिए मजीद मुज़ाकरात होंगे। तीसरा मरहले में गजा में मुतबादिल हुकूमत और बहाली के मंसूबे पर मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर इक़्तिदार के आखिरी दिनों में हातिम ताई बन गए। जो बाइडन ने 50 लाख तलबा का कर्जा माफ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बाइडन इंतजामिया अब तक 183 अरब डॉलर के कर्जे माफ कर चुकी। जो बाइडन ने ओहदा छोड़ने से पहले खारजा पॉलिसी पर तकरीर करते हुए कहा, हमारी खारजा पॉलिसी की वजह से रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सका। अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के मकासद हासिल किए। उसामा बिन लादन के मिलने से जंग का बुनियादी मकसद पूरा हुआ। दूसरे मुमालिक में कैद 75 अमरीकी शहरियों को वतन वापस लाने में कामयाब हुए। ईरान, रूस, चीन और शिमाली कोरिया इत्तेहाद के बावजूद कमज़ोर हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुदाखलत की तहकीकात। वफाकी जज ने साबिक अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट जारी करने की इजाज़त दे दी। 2020 के इंतखाबी मुदाखलत से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट आज जारी होने का इम्कान। उधर ट्रंप के नामजद काबीना अराकीन की तौसी के लिए सेनेट में समातें आज से शुरू होंगी। ट्रंप की तकरीर हल्फ बर्दारी में अमरीकी गुलकारा कैरी अंडरवुड परफॉर्म करेंगी।